Anyone? तो बेसिक डिस्कशन हम लोग फंक्शंस को डिस्कस किए थे, जिसमें सी को बेस्ड करके डिस्कशन हुआ था कि किसी भी पर्टिकुलर सर फैक्टोरियल का प्रोग्राम भी फंक्शन पे हुआ था। फंक्शन से किए थे। यस तो मतलब ये हम लोग सिंटेक्स पार्ट कर लिए थे। देन there is a concept of call by value, call by reference and call by address. तो ये चीज जो है C++ में you already see that particular part. तो एक ओवरव्यू हम लोग एक बार देखे हैं कि as like C++, in C++ we have an option to return multiple value through the reference function, reference variable. So in this particular program, all the particular calling of function is used, like call by value, call by address, and call by reference. Now here first two variable is used as a call by value, and first variable is used as a call by value, second one is used as a call by address, and the rest three is used as a call by reference. तो यहाँ पर you already know that कि call by value जब आप यूज करते हैं तो वहां पर your formal parameter doesn't affect the actual parameter, यानी whatever operation or whatever changing occur on the formal parameter does not affect the actual parameter. But in case of reference as well as the pointer, the changing, whatever changing occur in this particular pointer variable as well as reference variable, that will affect the original variable which is declared under actual as a actual parameter. So we just check out two number, दो नंबर जो है लिया गया है. फर्स्ट इज यूज टू कैलकुलेट सम ऑफ दिस टू नंबर. अब इसमें पहला नंबर आपका डेटा वेरिएबल के थ्रू लिया गया है, तो दूसरा नंबर जो है एड्रेस ऑफ डेटा वेरिएबल के थ्रू लिया गया है. तो एड्रेस ऑफ डेटा वेरिएबल के लिए आपका पॉइंटर टाइप वेरिएबल चाहिए एज ए फॉर्मल पैरामीटर, और यहाँ पर डेटा वेरिएबल ही हमने लिया है. रेफरेंस के लिए t is used to calculate sum of these two number. Max and mean is used to find out the maximum and minimum value at the same time. So in C you already have a concept that multiple value is returned through the reference variable, but you cannot return multiple value through return statement in C++. Now in case of Golang, we have provision to return multiple value with return statement also. तो यहाँ पर सिंपली दो नंबर एंट्री किया गया है और उसमें से लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट कैलकुलेट किया गया है. So when you execute this program, then we just supply two data, and on the basis of that the sum, largest as well as smallest value you will get. Now same thing in case of लास्ट क्लास हम लोग डिस्कस किए थे ये फैक्टोरियल का प्रोग्राम. एंड व्हेन now today we'll discuss the particular problem. Here we just check the name. So next we have to discuss that we can return multiple value at a time. Okay. So by using return statement in Go programming, we can return multi-value at a time. What is the syntax for that? Just see. Syntax is func as a keyword, then function name, and whatever data type you are taking,
तो अगर आप नंबर ऑफ पैरामीटर लेंगे तो नंबर ऑफ पैरामीटर इज सेपरेटेड विथ कॉमा and data type we mention. If the data type is same for all, then we place data type once, and there is a provision to use return statement. अब एक चीज और है कि लास्ट क्लास जो हम लोग प्रॉब्लम किए थे वहां पर अगर आपका यहाँ रिटर्न स्टेटमेंट नहीं होता है, ठीक है, इफ देयर इज नो रिटर्न स्टेटमेंट, if there is no return statement, then we just leave it blank. ठीक है ना, लास्ट क्लास हम लोग इसको रिटर्न किए थे, लेकिन अगर हमको रिटर्न नहीं कराना है तो वी जस्ट लीव इट ब्लैंक. इन C++ और इन C we have void data type. So void data type is used whenever we do not want to return any value. But here you just place leave it blank and start opening curly brace from this location. If you are not if you do not want to return any value through the function. तो यहाँ पर फैक्टोरियल फंक्शन है. इस फैक्टोरियल फंक्शन में एक एक्यूमुलेटर जैसे हम लोग लिए थे एज इट इज है, बट इन दिस पर्टिकुलर फंक्शन वी आर नॉट रिटर्निंग एनीथिंग. तो वट एवर वैल्यू वी हैव, लाइक कंडीशन विल बी चेक एंड द पर्टिकुलर statement will be executed here if the condition is true. So if n is less than 0, no factorial for negative value is printed. Otherwise, else if n equal to 0, then factorial of 0 is 1. That is the printed statement. मैसेज के फॉर्म में लिखा हुआ है. एंड अदरवाइज यहाँ पर भी हम लोग कंडीशन जोड़ सकते हैं. दोनों चीज हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. अगर एल्स यानी कि नंबर जो है लेस देन 0 भी नहीं है, इक्वल टू 0 भी नहीं है, और तीसरा क्या हो सकता है, नंबर जो है वो ग्रेटर देन 0 है. तो दिस इज द ओनली कंडीशन इन विच वी आर फाइंडिंग द फैक्टोरियल ऑफ एनी नंबर. तो एल्स पार्ट में यू कैन मेंशन दैट कंडीशन आल्सो, और यू जस्ट यूज एल्स एंड द पर्टिकुलर look for calculating factorial of any number. तो यहाँ पर लूप लिया हुआ है जैसे हम लोग कंडीशन लिए थे, and after closing of the loop within else we just print out the particular factorial of any number and then we terminate the particular function. Now in this particular function हम लोग क्या कर रहे हैं, simply we pass the parameter and we are not returning anything from this function. So everything is inside the function. तो जैसे C++ में आप देखें कि फंक्शन शुड हैव, इफ द फंक्शन शुड नॉट हैव एनी रिटर्न टाइप, देन एवरीथिंग इज प्लेस्ड इनसाइड द फंक्शन डेफिनेशन एरिया. तो जो भी आपको आउटकम जनरेट करना है उसको यहीं पर प्लेस करना है. तो वंस यू कॉल द फंक्शन, नाउ दिस वन इज मतलब एलोकेटेड इन द कमेंट सेक्शन. तो ये कमेंट सेक्शन में इसलिए डाला गया है क्योंकि यहाँ पर फैक्ट फंक्शन जब कॉल होगा तो आपका रिजल्ट से लेकर सारा कुछ आपका इस फंक्शन के अंदर ही डिस्प्ले होगा. तो व्हेन यू एग्जीक्यूट दिस वन, नाउ यहाँ पर अब आपका कुछ रिटर्न नहीं हो रहा है. तो अगर कोई निगेटिव वैल्यू हम यहाँ प्लेस करते हैं तो दैट इज द निगेटिव वैल्यू इज प्रिंटेड. अदरवाइज इफ वी प्लेस 0, then no factorial 0 का 1 होता है. and if you want to place suppose any positive value, then it will display factorial of that particular section is 0. अब in this particular program जो लास्ट क्लास में हम डिस्कस किए थे, we just avoid to use a return statement. Now after that we just check out today to return multi-value through return statement, how it is possible. So suppose we just change the name. Suppose there is a name, suppose Binayak Gupta or any कोई name है that contains 2 parts, and we want to swap the particular contents. यानी तो in Go there is a provision to swapping. जैसे हमको करना है अगर, तो there is a swap. You just design the swap function in which we take 2 parameter xy both having string data type and return type is also string. यहाँ से हम 2 वैल्यू को रिटर्न करेंगे तो रिटर्न टाइप हमारा स्ट्रिंग होगा. यहाँ पर क्या करना है, आपको सिंपली x और y का ऑर्डर को चेंज कर देना है.
यानी x और y के ऑर्डर को पहले y को और फिर x को रिटर्न करना है. That means whatever contents of x you have, that is placed in y, and whatever contents in y you have, that is placed in place of x. तो x के जगह y और y के जगह x सिंपली रिटर्न करेंगे एक से अधिक. तो यहाँ पर मेन में कैसे कॉल होगा, तो यहाँ शॉर्ट डिस्क्राइब किया हुआ है. कोई बताएंगे कि शॉर्ट डिस्क्राइब क्यों किया गया है? एनीवन? चलिए ठीक है. शॉर्ट डिस्क्राइब इसलिए किया गया है क्योंकि ए और बी का जो वैल्यू है हम रन टाइम में नहीं ले रहे हैं, तो कॉन्स्टेंटली ले रहे हैं. दूसरा कि इसका कोई वेरिएबल डिक्लेयर हम नहीं कर रहे हैं. ए और बी को हम डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं, इसका डेटा टाइप या वैर कीवर्ड से इसको डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं. तो ये कंपाइलर को ये बताने के लिए कि ये आपको ऑटोमेटिक और जस्टिफाई करना है अकॉर्डिंग टू द वैल्यू एलोकेटेड टू द दिस वेरिएबल. तो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन के लिए कोलोन और इक्वल टू हम लोग यूज करते हैं. स्वैप फंक्शन आपका यहाँ पर कॉल होगा. स्वैप में एक्स और वाई के लिए हम यहाँ दो स्ट्रिंग पास करेंगे. तो x में विनायक और y में गुप्ता is assigned as a call by value, and then we print the particular value a and b. So once you print the value of a and b, so actually a में b is assigned and b में a is assigned according to this return statement. Then you will get the output in this manner. हो गया. So directly your string is swapped. तो जो भी नाम लिए that is swapped to each other. ठीक है ना? तो on the basis of this, as well as the concept used in C++, I just give you one problem. Is it clear or not? बोलो. तो एक प्रॉब्लम करिए अभी. जो अभी हम C++ में बताए, बोलना. फाइंड आउट मैक्सिमम ठीक है. हेलो. मिनिमम बोलना. among three value using function. You have to use function, and three value is entered through the particular main function, yani as an actual parameter. So you have to use actual and formal concept. बोल नहीं पड़ेगा. At the same time, earlier जो अभी एग्जांपल लिए उसमें डेटा टाइप स्ट्रिंग था, तो you just use two time string to return the string, particular string variable. Here you have to return maximum and minimum, and both maximum and minimum is of integer type. So whatever value you will return from the particular नहीं भेजा था. function, उसके लिए आपको integer type रिटर्निंग स्टेटमेंट यूज करना है. लिखिए इसको. क्वेश्चन इज क्लियर टू यू? सचिन राज.
Roll number 37. Why you are connected if you do not want to set your audio? Okay. Roll number 56, 29, 27, 37, 39. चलिए कौन 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 बना लिए हैं? Raise the hand. प्रतीक सिंह नाग और मन्नू कुमार, सोनाली शर्मा, मानवेंद्र प्रियरंजन, मानसा कुमारी। कोई लिखे हैं? आप लोग ऑडियो कनेक्ट नहीं हो रहा है क्या? रोल नंबर 37, 39, 29, बैच 1, 37, 39। कश्यप उपाध्याय, हेलो। बोलिए। कौन बोल रहे हैं? कोई लिखे?
See. See this one. अभी जो प्रॉब्लम दी है उसमें you have to take three variable x, y, z having same data type and you have to return two variable in the form of maximum and minimum. So for returning that variable, we just declared max min as an integer data type because max or min में we just perform the checking of this three number x, y, z. So max and min we just allocate to the first variable and assign the first variable to the max as well as min, and then we start checking from the second variable. So second और third को हम लोग check करेंगे max के लिए. If the second variable is greater than existing max, then the max will be checked out. Otherwise, the next statement z will be checked, and if the z is greater than the existing max, then the max will be checked. Otherwise, max remains same. ठीक है ना, जो मैक्स में आप इनिशियली जो स्टोर किया वही रह जाएगा. अगर y और z से चेक नहीं हुआ तो उसी तरह से मिनिमम को भी जो x साइन है तो सेकंड और थर्ड वेरिएबल को चेक किया कि अगर y लेस देन मिनिमम है तो मिनिमम इज चेक्ड. अदरवाइज नेक्स्ट स्टेटमेंट z विल बी चेक्ड वेदर z इज लेस देन मिनिमम. इफ z इज लेस देन मिनिमम then z is checked as a and assigned to the minimum and a new minimum is z. Otherwise your max as well as min remains same. Whatever earlier initialization should take place, तो आपका earlier जो initialization हुआ उसी जैसा रहेगा. And then finally we return max as well as min. तो max और min जो return हो रहा है तो max that is the maximum out of three number and min is the minimum out of three number. Now in the main either you take input runtime input ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं, डायरेक्टली एलोकेट इनिशियलाइजेशन वर्क कर रहे हैं. तो यहाँ पर शॉर्टली डिस्क्राइब किया ए बी और सी तीनों को. तो ए is assigned by 12, b is assigned by 34 and c is assigned by 1. Now we just passed all the three variable in the function result res abc. So after passing these three variable, the max and min is calculated and एक समय में दो वैल्यू हम रिटर्न कर पा रहे हैं and the result will be displayed in the form of highest and lowest value. तो पहले maximum value और फिर minimum value यहाँ पर प्रिंट होगा 34 और 1. When we execute, then 34 and 1 is displayed. ठीक है, तो 34 और 1 यहाँ पर दिया हुआ था. अगर यहाँ पर 112 लेने तो 34 और 12 is displayed. Just we check out in any position. So now 112 and 12, that means in any positions whatever value you have that is checked. Main is what, यहाँ पर रिटर्न स्टेटमेंट में एक से अधिक वैल्यू रिटर्न हो रहा है. That means in Go programming language there is a provision to return more than one value at a time by using return statement, which is not in case of C and C++, where we are using return statement. In C++ we have a scope to replace this return statement by reference variable. So we can use reference variable. जो फर्स्ट प्रोग्राम हम लोग देखे C++ में, तो रेफरेंस वेरिएबल्स को इंट्रोड्यूस करके हम एक से अधिक वैल्यू को रिटर्न कर पा रहे थे. लेकिन यहाँ पर रिटर्न स्टेटमेंट्स के थ्रू भी आप एक से अधिक वैल्यू को रिटर्न करा सकते हैं. यहाँ तक में किसी को कोई डाउट नहीं है ना? तो जो दो सेक्शन हम लोग ऑलरेडी डिस्कस किए, तो ये प्रोग्राम देखे आप मैक्सिमम, तो दो सेक्शन हम लोग डिस्कस किए.
that is the call type and description. गो के लिए अब देखेंगे जो मेन पर्पस है कोई भी फंक्शन यूज करने का, वो मेन पर्पस हम लोग यहाँ देखे थे कि एक्चुअल, फॉर्मल एंड कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय एड्रेस और कॉल बाय रेफरेंस में क्या यूज होगा। तो गो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपका कॉल टाइप क्या हो गया, तो यहाँ पर आपका कॉल टाइप बेसिकली दो ही होगा, क्योंकि रिटर्न स्टेटमेंट से आप मल्टीपल वैल्यू रिटर्न कर पा रहे हैं। तो चूंकि पॉइंटर सपोर्ट है, तो इस जस्ट नेमिंग कन्वेंशन जो है वो आपका सी टाइप ही यहाँ यूज होगा। तो दैट इज द कॉल बाय वैल्यू, और फर्स्ट एंड सेकेंड वन इज द कॉल बाय रेफरेंस। ये दो तरह से आपका कॉल होगा कोई भी फंक्शन, बाय वैल्यू और बाय रेफरेंस। तो बाय वैल्यू यू ऑलरेडी नो कि एक्चुअल पैरामीटर इज डज नॉट अफेक्टेड if any changes occurred on the formal one. So that is the concept we already have in case of C as well as C++. तो call by value में actual parameter is not affected due to any change, changing in formal one. Here call by reference, you already know that key here we are working on the address of the particular data variable. So actual parameter is affected whenever any changing occur in the formal one. यानी कि कॉल बाय रेफरेंस का कॉन्सेप्ट यही है, कॉल बाय रेफरेंस अब यूज करेंगे तो वहां पर किसी भी तरह का चेंजिंग अगर आपका एक्चुअल फॉर्मल पैरामीटर में होता है तो वो आपके एक्चुअल पैरामीटर को भी अफेक्ट करेगा। ठीक है ना। अब आपका फंक्शन कितने कितने तरह से यूज होता है, व्हाट आर द यूसेज ऑफ फंक्शन। ठीक है ना, यू कैन से यूसेज ऑफ फंक्शन। तो अर्लियर जो हम लोग फंक्शन यूज किए वहां से आपको कुछ हिंट मिलेगा। व्हाट आर द यूसेज ऑफ फंक्शन, एनीवन? कैसे कैसे फंक्शन यूज होता है, किस किस पर्पस के लिए यूज होता है फंक्शन? reduce redundancy, यस, reduce redundancy sir. है ना। वो रिडंडेंसी तो ठीक है, वो तो आपका रीजन बिहाइंड यूजिंग फंक्शन है, लेकिन यूज कैसे कैसे करते हैं वो रिडंडेंसी तो वो तो ठीक है, दैट इज द रीजन बिहाइंड यूजिंग फंक्शन। तो उसमें यहाँ पर पूछा जा रहा है यूसेज ऑफ फंक्शन, फंक्शन का यूज कहाँ कहाँ होगा, किस किस पर्पस के लिए फंक्शन यूज होगा। तो एक तो रिडंडेंसी हो गया, आप बता रहे हैं रिडंडेंसी, डुप्लीकेसी, रिपीटेटिव इंस्ट्रक्शंस को अवॉइड करने के लिए यूज होगा, रिपीटेटिव टास्क को परफॉर्म करने के लिए, बोला सर रिपीटेटिव टास्क को परफॉर्म करने के लिए। फंक्शन एज ए वैल्यू, ठीक है ना। फंक्शन का यूसेज क्या है कि फंक्शन को एज ए वैल्यू आप यूज कर सकते हैं। फंक्शन एज ए वैल्यू यूज करने का मतलब क्या है, जैसे अभी अभी यूज किए हम लोग, तो यूसेज फंक्शन का यूज क्या है, किसी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए हम फंक्शन यूज कर सकते हैं। स्टैटिक मैनर में हम फंक्शन को यूज कर सकते हैं, तो डायनेमिक मैनर में भी यूज कर सकते हैं। इन डायनेमिक मैनर और फंक्शंस को एज ए मेथड हम यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, मेथड के लिए यानी किसी पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए हम एज ए मेथड स्पेशल फंक्शंस को यूज कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो मेथड आपको फंक्शन को ही अगर स्पेशलिटी अगर देते हैं, स्पेशलाइजेशन, देन इट बिकम मेथड। जैसे मेथड का कोई एग्जांपल बता सकते हैं फंक्शन का, जहां पर फंक्शन को एज ए मेथड यूज कर रहे हैं?
जैसे आप लिख रहे हैं कोई फंक्शन एरिया निकालने के लिए, ठीक है, तो एरिया ऑफ सर्किल, एरिया ऑफ सर्किल का एक फॉर्मूला होता है। अब इस फॉर्मूला को अगर हम इस फंक्शन के अंदर जो है डिप्लॉय कर दिए, अप्लाई कर दिए, तो ये फॉर्मूला आपका एज ए, यानी कि वो जो फंक्शन एरिया नाम का जो फंक्शन आप बनाए, ये एरिया नाम का जो फंक्शन है, ये एज ए मेथड आपका पूरे प्रोग्राम में यूज हो सकता है। यानी जब जब आपको सर्किल का एरिया निकालना होगा तो आप इस एरिया मेथड को कॉल कर सकते हैं। तो दिस इज द फंक्शन यूज्ड एज ए मेथड। तो यूसेज ऑफ फंक्शन इज इन द फॉर्म ऑफ मेथड। फंक्शन एज ए वैल्यू का कोई एग्जांपल दे सकते हैं? जितना भी आप कॉल बाय वैल्यू की बात कर रहे हैं, तो कॉल बाय सर ये वैल्यू वैल्यू एक्चुअली आपका पैरामीटर पास फंक्शन एज ए कराने, वैल्यू ही यूज हो रहा है, ठीक है यस ना? सर, पैरामीटर पास कराने के लिए। हाँ, और डायनेमिक मैनर में जो कॉल बाय रेफरेंस की बात कर रहे हैं, तो एक्चुअली में आप डायनेमिक मैनर में ही उसको यूज कर रहे हैं। डायनेमिक मैनर का मतलब कि एनी टाइम व्हेनेवर यू वांट टू यूज, और एनी टाइम व्हेनेवर यू मॉडिफाई एनी कंटेंट्स within the particular procedure, then it will affect the other part of the program or code also. So dynamically you can change the part of the code by using the function को यूज करके आप डायनेमिकली भी चेंज कर सकते हैं इंटायर कोड को। जहां जहां उस कोड से अफेक्टेड होगा आपका पार्ट ऑफ कोड, तो यू कैन अफेक्ट द पर्टिकुलर कोड बाय यूजिंग द पर्टिकुलर फंक्शन। अब इसके अलावा आप फंक्शन को जितना C++ में जैसे जानते हैं, उतना आप यहाँ गो प्रोग्रामिंग में भी यूज कर सकते हैं। दोनों चीज हम लोग डिस्कस कर लिए, फंक्शन सिंगल रिटर्न स्टेटमेंट, फंक्शन विथ मल्टीपल रिटर्न स्टेटमेंट, फंक्शन विथ नो रिटर्न स्टेटमेंट, ठीक है ना? तो इन एनी मैनर यू कैन यूज द पर्टिकुलर फंक्शन। एनी क्वेरी? Next we have to discuss Go scope rules. यानी कि there is certain rules as like in C++ we discuss about the local variable, global variable, ठीक है ना, storage class. तो here also there is certain scope for the variable. आपके variable का कुछ scope है, उस scope के basis पर आपका variable use होता है। तो सबसे पहले कि what do you mean by a scope? Anyone? What do you mean by a scope? In C and C++, you already have a concept of a scope and lifetime of any variable. तो वहां पर हम लोग देखे सर थे C++ में बताए थे स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, तो यूज किया जाता है ग्लोबल वेरिएबल और मेंबर फंक्शन ऑपरेटर है ना, तो वो स्कोप एंड लाइफ टाइम थोड़े। C++ में प्रोग्राम है सर। ऑपरेटर यूज होता है। स्कोप और लाइफ टाइम जैसे स्टोरेज क्लास यूज करते हैं, वेरिएबल जहां से एक्सेसिबल होगा सर उसी को। हाँ, the region or the area where your variable is placed, and scope is कि up to which time interval the variable is in existence. Existence of variable क्या होगा? जैसे स्टोरेज क्लास हम लोग डिस्कस करते हैं, तो वहां पर डिस्कस करते हैं ऑटो, एक्सटर्न, स्टैटिक, रजिस्टर। अब यहाँ पर ये तीनों हमारा जो है वो मेमोरी टू मेमोरी ऑपरेशन करता है, ये रजिस्टर टू रजिस्टर ऑपरेशन करता है। तो ये वॉल्यूम ऑफ डेटा को हैंडल करने के लिए हम रजिस्टर को प्रिविलेज देते हैं, प्रेफरेंस देते हैं यूज करने का। बाकी ऑटो, एक्सटर्न और स्टैटिक, इस तीनों में आपको पता है कि लोकल और ग्लोबल ये दो तरह का वेरिएबल यूज करते हैं। तो लोकल वेरिएबल बाय डिफॉल्ट आपका ऑटो स्टोरेज क्लास का मेंबर होता है, और ग्लोबल एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास का मेंबर होता है। अब टाइम टू टाइम एज पर रिक्वायरमेंट हम स्टैटिक और रजिस्टर, ये दो तरह का स्टोरेज क्लास यूज करते हैं C++ में। अब ये स्कोप कैसे है? अगर ऑटो स्टोरेज क्लास का मेंबर है, कोई लोकल वेरिएबल है, तो लोकल वेरिएबल का स्कोप क्या होता है? विद इन द पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट, यानी कि द प्लेस वेयर द पर्टिकुलर वेरिएबल इज डिक्लेयर्ड। तो अगर आपका कोई वेरिएबल इस ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट में डिक्लेयर है, var a int, तो इस a का एक्सेशन इसी ब्लॉक के अंदर होगा।
तो ये लोकल फॉर दिस ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट हो जाएगा, है ना, दैट इज द स्कोप एंड लाइफ टाइम ऑफ एनी वेरिएबल। तो देयर इज सर्टेन रूल्स आल्सो इन गो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ग्लोबल का स्कोप क्या होगा? बात कर रहे हैं जी इधर। ग्लोबल कहीं से भी असेस्ट हो सकता है सर, किसी भी का स्कोप, ग्लोबल का स्कोप आप बोल सकते हैं थ्रू आउट द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम होता है, और जो लोकल होता है उसका एग्जिस्टेंस या एक्सेशन जो है विद इन द पर्टिकुलर स्कोप, यानी कि ब्लॉक होता है। अगर मेन फंक्शन के अंदर है तो थ्रू आउट मेन फंक्शन यूज होगा, अगर किसी फॉर लूप के अंदर है तो फॉर लूप के बाहर वो यूज नहीं होगा, उसका फाइनल आउटकम या कहीं प्रिंट कर रहे हैं तो वो यूज होगा, लेकिन उसका स्कोप उसी पर्टिकुलर लूप के अंदर ही डिलिमिटेड रहेगा। तो दैट इज द स्कोप एंड लाइफ टाइम। स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर वो ऑपरेटर है, ठीक है ना, उसको स्कोप रूल के अंदर नहीं लिया जाएगा। तो अगर बेसिकली इसको डिफाइन करना हुआ कि स्कोप एक्चुअली है क्या, तो वी कैन मेंशन हियर कि इन गो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज scope designate the region of any variable, region of the program where a defined variable can exist, and beyond that the variable cannot be accessed। उस रीजन के बाहर आपका एक्सेस नहीं होगा। जैसे अभी हम लोग डिस्कस किए लोकल और ग्लोबल वेरिएबल, तो उसी तरह से यहाँ पर भी आपका स्कोप है कि अब यहाँ पर क्या है कि कोई बताएंगे कि अभी तक जो प्रोग्रामिंग किए उससे आपको क्या ऑब्जर्वेशन हुआ कि यहाँ पर गो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वेरिएबल का रीजन कहाँ कहाँ हो सकता है? What are the various places where the variable are declared? Anyone? क्योंकि फंक्शन भी हम लोग डिस्कस कर लिए अब, तो अब फंक्शंस का भी कॉन्सेप्ट है, फंक्शंस में भी वेरिएबल आपने यूज किया है। तो लूप में हो सकता है, हाँ, लूप में भी यूज करते हैं, ठीक है। तो व्हाइल स्टेटमेंट और लूप में यूज करिए या फंक्शन में यूज करिए, ऑल आर लोकल टू द पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट। लूप is also creating a block of statement, ब्लॉक ऑफ this function स्टेटमेंट is में also सब जगह creating a block of statement। तो all are under local variable में आपको दोनों आ जाता है। तो बेसिकली अगर देखा जाए यहाँ, तो देयर आर, अभी तक जो हम लोग ऑब्जर्व किए हैं, तो देयर आर थ्री प्लेसेस where variables can be declared in Go programming language। ये थ्री प्लेस क्या क्या हो सकता है? पहला, जैसे अभी आप बता रहे हैं, फॉर लूप के अंदर हो सकता है, कोई फंक्शंस के अंदर हो सकता है, ठीक है। ये सब क्या है? यानी इनसाइड और फंक्शन, inside a function या आप बोल सकते हैं इसको
और ब्लॉक, यानी दोनों ही केस में कोई फंक्शन के अंदर, चाहे वो यूजर डिफाइंड फंक्शन हो, मेन फंक्शन हो, ये सब इसमें आ जाएगा। तो स्कोप रूल आपका सेट होगा इनसाइड अ फंक्शन, या ब्लॉक आप जो बोल रहे हैं फॉर लूप, या जो कोई लूप कंट्रोल स्टेटमेंट, तो लूपिंग के लिए के केस में, या इफ कंट्रोल स्ट्रक्चर भी, जहां पर इफ में नंबर ऑफ स्टेटमेंट ले रहे हैं, या एल्सिफ लेडार में भी नंबर ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो वहां पर भी ब्लॉक के अंदर भी आप डिक्लेयर कर सकते हैं पर्टिकुलर स्पेसिफाई कंडीशंस को। तो ये सब क्या है एक्चुअली, ऑल आर, अभी इसीलिए हम इसको एक बार रिव्यू कराए थे। तो यहाँ पर उसके बेसिस पर इसको क्या बोल सकते हैं, स्कोप इसका क्या होगा, लोकल टू द फंक्शन where the variable is declared, local to the block of statement where the variable is declared. That means in all these cases your scope of the variable is local and your variable is treated as local variables. तो आप किसी फंक्शन में लिखें या फॉर लूप के साथ लिखें, इफ स्टेटमेंट डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर के साथ लिखें, डिक्लेयर करें, कहीं भी डिक्लेयर करेंगे उसको लोकल वेरिएबल, उस फंक्शन का लोकल वेरिएबल ही ट्रीट किया जाएगा। अब लोकल वेरिएबल का क्या स्कोप होता है उसको हम लोग देखेंगे, बट बिफोर डिस्कशन ऑफ द स्कोप ऑफ द लोकल ग्लोबल वी मस्ट हैव एन आइडिया कि व्हाट आर द वेरियस प्लेस वेयर योर वेरिएबल्स आर डिक्लेयर्ड इन गो प्रोग्रामिंग। तो एक तो लोकल वेरिएबल हो गया, दूसरा ग्लोबल वेरिएबल का मतलब सिंपली आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं आउटसाइड ऑफ ऑल फंक्शन, आउटसाइड ऑफ ऑल फंक्शन। ठीक है, तो आउटसाइड ऑफ ऑल फंक्शन, दैट सर मेन फंक्शन हो जाएगा, यस मेन फंक्शन में होगा ना आउटसाइड ऑल फंक्शन, मेन फंक्शन से भी बाहर, ग्लोबल तभी ना करेंगे। ग्लोबल वेरिएबल यूज किए थे कि नहीं, कोई प्रोग्राम में किए थे? आउटसाइड ऑफ ऑल फंक्शन जैसे C++ में यूज करते हैं, तो मेन फंक्शन से भी बाहर और यूजर डिफाइंड फंक्शन से भी बाहर, दैट मीन्स दैट वेरिएबल इज एक्सेस्ड बाय मेन फंक्शन एज वेल एज एनी यूजर डिफाइंड फंक्शन इफ यू आर टेकिंग मल्टीपल नंबर ऑफ यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो उस केस में यहाँ पर इसका स्कोप किसके लिए हम लोग तय करेंगे, ग्लोबल वेरिएबल्स के लिए, दैट वेरिएबल्स आर ट्रीटेड एज ए ग्लोबल वेरिएबल्स। तो उसका स्कोप, ग्लोबल वेरिएबल्स का स्कोप देखेंगे क्या होगा। एंड थर्ड वन इज व्हाट, एक और जगह है जहां पर इसको यूज करते हैं, एक तो हो गया कि इनसाइड ऑफ फंक्शन, फंक्शन के अंदर, एक हो गया ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट, फिर हो गया आउटसाइड ऑफ ऑल फंक्शन, और एक और क्या जगह है जहां पर हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, अभी हम लोग डिस्कस किए हैं, स्कोप इन द definition of function parameters. Okay, in the definition of function parameters, that variables are treated as a formal parameters आप बोले या formal variables, है ना, formal variables. So again these formal variables are also local to the function where the particular function is defined. तो जहां पर फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं उसके लिए जो फॉर्मल पैरामीटर ले रहे हैं वो फॉर्मल पैरामीटर भी आपका लोकल ही होता है। इसका मतलब ओवरऑल देखा जाए तो वी हैव टू डिफरेंट स्कोप ऑफ वेरिएबल्स, लोकल एज वेल एज ग्लोबल वेरिएबल। तो लोकल वेरिएबल एज वेल एज ग्लोबल वेरिएबल। तो लोकल वेरिएबल, अब यहाँ पर हम लोग इसको अलग अलग सेक्शन जरूर था हमारा स्टोरेज क्लास, लेकिन मेन हमारा था लोकल और ग्लोबल ही। तो बाय डिफॉल्ट ऑल लोकल वेरिएबल को ऑटो स्टोरेज क्लास का मेंबर मानते थे और ऑल ग्लोबल वेरिएबल को एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास का मेंबर मानते थे। यहाँ पर हमारा क्या हो गया, इंटायर हमारा जो ब्लॉक है वो लोकल वेरिएबल्स का हो गया। तो लोकल वेरिएबल्स का मतलब है कि आपका इसका स्कोप क्या होगा, फर्स्ट वी डिस्कस। तो लोकल वेरिएबल्स और ये दूसरा हो गया ग्लोबल वेरिएबल्स, यही दो आपका वेरिएबल्स यूज होता है और इसी के बेसिस पर इसका स्कोप डेजिग्नेट होता है। तो लोकल वेरिएबल
अगर मेन फंक्शन से रिलेटेड है, क्योंकि लोकल वेरिएबल आपका इनसाइड फंक्शन एज ए फंक्शन डिफिनेशन एज ए फॉर्मल पैरामीटर हम लोग यूज करते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन। तो इन सभी केसेस में या ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट में उसका जो है एक्सटेंशन यानी कि उसका एग्जिस्टेंस क्या होगा, उसका एग्जिस्टेंस टू द पर्टिकुलर मेन फंक्शन, यानी लोकल टू द मेन फंक्शन, लोकल टू द ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एंड लोकल टू द फंक्शन डिफिनेशन, यानी कि फॉर विच द फंक्शन फॉर विच द पर्टिकुलर पैरामीटर इज टेकन। तो जिस पर्टिकुलर फंक्शन को डिफाइन करने के लिए पैरामीटर लिया गया है उससे लोकल ही आपका उसका एक्सेसिबल होगा। तो कोई भी एक्सेसिंग आप जब करेंगे तो उसको लोकल टू द पर्टिकुलर फंक्शन ही आप करेंगे। और ग्लोबल वेरिएबल्स के केस में तो यू कैन टेक एनी एग्जांपल। अभी जैसे हम लोग एग्जांपल लिए, यहाँ पर इस एग्जांपल में, ठीक है ना, यहाँ पर सपोज करिए ABC, अगर हमको XYZ को यहाँ भी यूज करना है और यहाँ भी यूज करना है, तो हम इसको ऐसा डिक्लेयर कर सकते हैं var x, y, z, ठीक है ना, int। तो ये आपका क्या हो गया, ये मेन के भी बाहर हो गया, फंक्शन से भी बाहर हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर XYZ हम यहाँ यूज कर रहे हैं, इसमें भी यूज कर लिए, और यहाँ नीचे में अगर आप ये ABC के जगह XYZ यूज करना चाहते हैं तो X ऑल आर, जहां पर यूज होगा, यानी ये XYZ मेन फंक्शन में आपका यूज हो रहा है तो यहाँ के लिए ये लोकल हो गया, यहाँ XYZ फॉर्मल पैरामीटर में यूज हो रहा है तो वहां के लिए लोकल हो गया, और इस XYZ को हम अलग अलग फंक्शन में यूज कर पा रहे हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ ये ग्लोबली डिक्लेयर्ड है। तो व्हेन यू एग्जीक्यूट दिस कोड, अनडिफाइंड कहीं ABC यूज कर लिए क्या, यहाँ पर पास कर दिए हैं। इट इज ओके। तो स्कोप जैसे आपका C++ में था कि ग्लोबल वेरिएबल जो आपका है वो उसका स्कोप थ्रू आउट द प्रोग्राम होगा, तो प्रोग्राम के किसी भी सेक्शंस में उसको यूज कर सकते हैं। तो XYZ यहाँ पर आपका ग्लोबली डिक्लेयर्ड था, तो ग्लोबली डिक्लेयर्ड होने के चलते XYZ को आपने फंक्शन में भी यूज कर लिया और उसी XYZ को यूजर डिफाइंड फंक्शन में भी यूज किया और मेन में भी यूज कर लिया। इज इट क्लियर? तो इन द सेम मैनर जो आपका ग्लोबल है, लोकल वेरिएबल है, या जो कंसेप्ट C++ में है उसी कंसेप्ट को यहाँ पर भी हम लोग फॉलो करते हैं। तो लोकल वेरिएबल स्कोप क्या हो जाएगा लोकल वेरिएबल का, फाइनली यू कैन मेंशन हियर विद इन द फंक्शन और block. So this is the scope of local variable. And what is the scope of global variable? है ना, throughout of program, है ना, utilize by any function both main and user defined one। तो इसका स्कोप आपका इस तरह से लिमिटेड होगा। एग्जाम्पल आप कोई भी एग्जाम्पल प्रोग्राम ले सकते हैं जहां पर भी आप इसको यूज करना चाहेंगे।
इसमें किसी को कुछ पूछना है? नेक्स्ट क्लास में डिस्कस द पर्टिकुलर टॉपिक।